Hello everybody, welcome back to the informative world and our today's topic is rotational symmetry as you can see over here. And these two topics are very important. Rotational symmetry consists of angle of rotation and one more thing which is order of rotational symmetry. So we all need to remember these two topics very well. We need to practice them very well in order to understand the rotational symmetry. So chalo, let's begin understanding it. So let's read the definition, and whatever I'm gonna underline, the words I'm gonna underline are interconnected with each other, and you need to understand the relation between them, the connection between them. Although I'll be explaining you the relation, but you too have to try. So the minimum angle through which the figure has to be rotated to get the original figure, let me underline, is called the angle of rotation. And the point about which the figure is rotated is known as the center of rotation. So these are a few words which are very important. So let's understand the relation. So जैसे whenever we rotate a particular figure, suppose if I am rotating this figure. Also, one more thing you need to remember, that you need to remember the turns. That what are you gonna do whenever it is asked to rotate a particular figure to 90 degree. You need to remember the turns in this particular section of rotational symmetry, because as the name itself says rotational symmetry, that means you have to rotate the figure, right? So you turns are very important parts of rotational symmetry. So जब भी मैं किसी फिगर को रोटेट करती हूँ, फिगर तो सेम रहती है बट उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है और बहुत डिफरेंस आ जाता है. Like you can see over here, figures are given over here. You can see what are the differences between the exact figure and the rotated figures. ठीक है, तो हम फिगर्स को जब रोटेट करते हैं, so due to the change in position we see much changes, right? वो हम बहुत सारे चेंजेस होते देखते हैं जो एग्जैक्ट फिगर से जो रोटेटेड फिगर रहते हैं बहुत ही डिफरेंट रहती है. तो जब भी हम फिगर्स को रोटेट करते हैं तो डिफरेंट एंगल्स पे रोटेट होती है, इजंट इट? इट रोटेट्स ऑन डिफरेंट एंगल्स. सो कभी कभी वो सेम लगती है, कभी कभी वो डिफरेंट लगती है. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेम ही नहीं लगती है, वो सेम भी लगती है, राइट? सो whenever a particular figure looks same, ठीक है, जब भी कोई फिगर सेम लगती है एंड इट इज द मिनिमम, आई मीन जब भी किसी एंगल पे रोटेट करने पर, लेट मी टेल यू द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ इट, जब भी किसी एंगल पर रोटेट करने पर कोई पर्टिकुलर फिगर सेम दिखती है और वो भी मिनिमम एंगल, ठीक है, मिनिमम एंगल, जब भी हम किसी फिगर को उसके मिनिमम एंगल पे रोटेट करते हैं और वो सेम दिखती है, सो दैट पर्टिकुलर एंगल becomes the angle of rotation for that particular figure. I know it will take much time to understand, but don't worry. Just listen to me. Let me tell you that the minimum angle. यार minimum angle से क्या मतलब है? तो जैसे अगर मैं सपोज एक मैं फिगर रोटेट कर रही हूँ, तो मैं जब भी उसको रोटेट कर रही हूँ तो मुझे 90 डिग्री पर वो सेम दिख रही है, ओके. अब वो मुझे 270 डिग्री पर भी सेम दिख रही है, ओके. अब मैं कंफ्यूज हो गई क्योंकि एंगल ऑफ रोटेशन तो यही कहता है कि जो भी फिगर होगी वो किसी एंगल पे अगर सेम दिखे तो वो एंगल उसका एंगल ऑफ रोटेशन बन जाता है. बट मिनिमम इज देयर, मिनिमम, तो इधर मिनिमम क्या है? 270 डिग्री मिनिमम है, 90 डिग्री मिनिमम है. ऑफ कोर्स 90 डिग्री इज मिनिमम, तो 90 डिग्री विल बी द एंगल ऑफ रोटेशन फॉर दैट पर्टिकुलर फिगर. ठीक है, हमेशा मिनिमम को ध्यान में रखना जब भी हम किसी फिगर को रोटेट करें. ओके, जब भी
Just a second. Yeah, I was talking about angle of rotation. So, whenever a figure is rotated at a particular angle and it looks exactly the same it is, एंड वो भी उसका मिनिमम एंगल होना चाहिए, ठीक है। जब भी मैं किसी पर्टिकुलर फिगर को एक पर्टिकुलर एंगल पे रोटेट करूं और वो एग्जैक्टली द सेम दिखे जैसी वो है एट इट्स मिनिमम एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रोटेशन। मैंने हर तरीके से समझा दिया, ठीक है। अब इन फिगर्स के थ्रू भी हम समझ सकते हैं। एंड द पॉइंट अबाउट विच द फिगर इज रोटेटेड इज नोन एज द सेंटर ऑफ रोटेशन। अब जिस पॉइंट से हम उसको रोटेट करते हैं, यानी जिस पॉइंट से हम उसको रोटेट कर पा रहे होते हैं, वो उस फिगर का एंगल ऑफ रोटेशन कहलाता है। ओके, जैसे अरे यार सेंटर ऑफ रोटेशन कहलाता है। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। इट इज नोन एज सेंटर ऑफ रोटेशन। जिस पॉइंट से हम उसको रोटेट कर पाते हैं हम उसे कहते हैं सेंटर ऑफ रोटेशन। जैसे इस फिगर में इसका सेंटर दिस इज इट्स सेंटर, राइट। तो ये है इसका सेंटर ऑफ रोटेशन इस फिगर में, दिस इज इट्स सेंटर ऑफ रोटेशन, और ये है इसका सेंटर ऑफ रोटेशन इन दिस फिगर, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू अ वेरी कॉमन एग्जांपल। जो फिजिट स्पिनर हमने देखे हैं, तो जो फिजिट स्पिनर हम स्पिन करते हैं कैसे करते हैं, एक उसका सेंटर होता है, राइट। हम उसके सेंटर से ही उसको स्पिन कर पाते हैं फिजिट स्पिनर को, राइट। ऐसे हम उसको उसके सेंटर से ही कर पाते हैं, isn't it? You can understand rotational symmetry through a fidget spinner also. It is a very nice and common example of this particular rotational symmetry, right? Okay. अब यहाँ देखो, यहाँ ये इसका सेंटर ऑफ रोटेशन है। चलो अब ये कह रहे हैं that this is the 180 degree turn of this figure। देखें, okay, let's see। जैसे this is my figure, ठीक है। Let me draw it a bit vertical, yeah। So this is the figure and ये जो 180 डिग्री है, ये इट इज शोइंग कि ये कुछ इस टाइप से दिखेगा जब मैं इसको 180 डिग्री पर रोटेट करूं। ओके, लेट्स सी। नाउ दिस इज इट्स सेंटर ऑफ रोटेशन। अब मैं इस रोटेशन के थ्रू इसको रोटेट कर रही हूं। अब मैंने इसको रोटेट किया, फिर ये कुछ इस टाइप का दिखेगा, ठीक है। अब फिर मैंने इसको रोटेट किया, तो अब ये फाइनली कुछ इस टाइप का दिख रहा है। तो यस, एट ये 90 डिग्री रोटेशन था और ये 180 डिग्री रोटेशन है। तो जब मैंने इसको 180 डिग्री रोटेशन दिया तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। सो मैंने कैसे रोटेशन दे पा रही हूं मैं, बिकॉज ऑफ द सेंटर ऑफ रोटेशन, क्योंकि जो फिगर है वो उसके सेंटर ऑफ रोटेशन से ही रोटेट हो रही है। आया समझ में? गुड, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। ओके, सेम ओवर हियर आल्सो, ये फिगर भी अपने सेंटर ऑफ रोटेशन के कारण ही रोटेट हो पा रही है। ओके, अच्छा, अगर मुझे इस फिगर का एंगल ऑफ रोटेशन पता लगाना, यानी ये कब सेम दिखे, चलो लेट्स फाइंड आउट। जैसे दिस इज द फिगर, 90 डिग्री पे ये कुछ ऐसी दिखेगी। ओके, आई एम नॉट एबल टू ड्रॉ प्रॉपरली, ठीक है। और फिर ये एज टोल्ड ओवर हियर 180 डिग्री पे कुछ ऐसी दिखेगी। 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, फिर बाद में 270 डिग्री पे कुछ ऐसी दिखेगी ये, और फिर एट लास्ट 360 डिग्री पे ये कुछ ऐसी दिखेगी। तो ना तो ये 90 डिग्री पे सेम दिख रही है, ना तो ये 180 डिग्री पे सेम दिख रही है, और ना ही ये 270 डिग्री पे सेम दिख रही है। ये कब सेम दिख रही है? ये 360 डिग्री, यानी कंप्लीट रोटेशन होने के बाद 360 डिग्री पे सेम दिख रही है, राइट। तो एंगल ऑफ रोटेशन विल बी 360 डिग्री फॉर दिस फिगर। ओके, क्या होगा एंगल ऑफ रोटेशन फॉर दिस फिगर? इट विल बी 360 डिग्री। इसको रोटेट करके, एंगल ऑफ रोटेशन हमेशा रोटेट करके ही पता लगा सकते हैं। तो आई विल बी एक्सप्लेनिंग रेस्ट in my next part. Till then, take care. Bye.